So I want to ask you, sure there's scale, but talk to me about the heart of Subedar. So इवेंचुअली मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक फिल्म में इमोशन या किसी भी कहानी में, फिल्म क्या, किसी भी कहानी में इमोशन नहीं है तो चाहे आप स्केल कर लो, प्लास्टिक स्केल, बड़ा स्केल, मीटर स्केल, कुछ फायदा नहीं होता है। इवेंचुअली ये कहानी एक बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करती है। प्राइमरली फादर डॉटर, फिर दोस्ती की, और कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान की जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है, ओके, आफ्टर वर्किंग इन द फौज फॉर सो लॉन्ग, और जब अचानक वापस आता है इस दुनिया में, तो किस तरह स्ट्रगल करता है अपने डे टू डे एग्जिस्टेंस में। सो इमोशन बिकम्स द कोर, द रिजल्ट इज व्हाट यू सी ऑन स्क्रीन, ओके, दैट्स हाउ आई विल पुट इट, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर वे दैट you can't touch, you have to touch emotion. That's the only way you can deliver anything. Well, thank you so much for that. I'm taking this to Vikram. Vikram, thank you so much for being with us. And I want to ask you that sure, there's all this talk of scale. There's all this talk of it needs to be a badi picture. लेकिन जैसे मैंने सुरेश सर से पूछा कि अगर हार्ट नहीं हो तो कोई मायने नहीं रखता स्केल. And I know for a fact that here you are, you're distributing this film via Prime Video to 240 plus countries, territories. That is scale for you? Theme song type baj raha hai kahin piche. But it's scale that's unimaginable. This is my 15th collaboration with Prime Video, and through these collaborations I have grown to see the power of what it means to go to 240 countries. Subedar एक्सक्लूसिवली प्राइम वीडियो पर वर्ल्ड वाइड प्रीमियर हो रही है इस स्केल पर. ये एक फिल्म यूनिट के लिए, इस फिल्म से जुड़े जितने भी लोग हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों को जिनमें से बहुत सारे यहाँ पीछे की 2-3 रोज में बैठे हैं. इट मीन्स द वर्ल्ड व्हेन दे गेट मैसेजेस फ्रॉम देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन सम ऑफ दोस 240 कंट्रीज. That to me is the scale of a story reaching its true audience. और सूबेदार एक वही फिल्म है जो पूरी दुनिया में अपने हार्ट की वजह से कनेक्ट करेगी. So that to me is true scale. Well, thank you so much for that. We're just going to take a second and just ask if there is this music that's going to go on. It's from the outside. So we're going to hopefully just hope that your ears are with us, all right? All right. Thank you so much. I'm going to take this to AK. AK, thank you so much for your patience, your presence, all of it. I think what's really big for me, and I said it when Radhika talked to us, is the father-daughter relationship. As you yourself are a father to daughters, beautiful ones, I'm sure there's something there that made you connect with this character on that level. So talk to us about that, why that is special for you. इस फिल्म में मुझे बहुत काफ़ी चीज़ों से कनेक्ट मैं कर सका हूँ इस फिल्म में. फादर डॉटर, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड, ड्यूटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, मेहनत, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड फैमिली. सो ऑल दीज थिंग्स विच आई हैव गॉन, मेरे जाती जिंदगी में भी ये सब चीज़ें होती रहती हैं जहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट होता है. And how I, because, when you have a director like Suresh Saab, और जो ये कहानी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ज़बरदस्त टीम, music, everything is just come together, and I've connected with everything. Of course, the father-daughter relationship is the core of the film, and working with Radhika and the kind of talent she has is absolutely incredible. Incredible talent. Matlab, I've been very fortunate. I've worked with really phenomenal leading actresses and phenomenal actresses in my entire career. बहुत अच्छी actresses के साथ मैंने काम किया है, young, but she's really special. And you will see this in this film, I promise you. और मैं कभी ये प्लान करके नहीं आया था, मगर आपने फादर डॉटर के बारे में कहा, बहुत सी फिल्मों में मैंने कहानियाँ होती हैं,
रिलेशनशिप्स होती है, मगर कहीं अगर आपके सामने वो एक्ट्रेस नहीं है और वो जुगलबंदी नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते. क्या बात है, बिल्कुल. तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे आई वॉज कॉन्स्टेंटली challenged by her, what she threw at me. And there was, and Suresh was there as the headmaster, as the ringmaster. And the scenes were so beautiful. There's so much of soul in this film. As the film is, it's not just an action film. Action है film के अंदर, but बहुत सारे layers है इस film के अंदर. The cinematic brilliance of this film is what I feel which will appeal to the people. ये तो सब चीज़ें हैं, हम ट्रेलर में ये सब चीज़ें होती हैं, हम आते हैं, बात करते हैं. But when you see the cinematic brilliance in this film, and ये एक फिल्म मेकर ही कर सकता है. And Suresh is that filmmaker. And हम सब, we were just clay in his hands. And he has inspired us, motivated us to do our best. And अगर आपको ऐसा लगा कि हम दोनों की रिलेशनशिप अगर अच्छी लगी आपको, तो वो उस फिल्म की लिखत है, इस फिल्म का स्केल है, ये जो दुनिया सुरेश ने क्रिएट की है. हमने ये फिल्म पूरी लखनऊ में शूटिंग की, हमने आगरा में शूटिंग की, हमने कानपुर में शूटिंग की, और सब रियल लोकेशन में शूटिंग की है. इस फिल्म में कोई ग्रीन स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं है, सब रियल है. एक्शन रियल है, सब रियल है, इमोशन रियल है. मतलब ये आवाज से आपको कुछ फर्क पड़ रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मैंने इस फिल्म का सबसे डिफिकल्ट, मोस्ट क्रूशियल सीन, मोस्ट इमोशनल सीन, बाहर हजारों लोग बाहर खड़े थे और झकास एजी ओजी सब चल रहा था, मगर मैंने बोला आई जस्ट स्विच्ड ऑफ द नॉइज एंड आई फोकस्ड एंड आई कॉन्सेंट्रेटेड. एंड अगर आप दिल से करो, कुछ भी दिल से करो, कितनी भी आवाजें बाहर आ जाए, और आप सब यहाँ बैठे हैं, और अगर आप दिल से चाहेंगे कि आप सब खुश हों, और जो हम बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, और अगर हम नहीं कनेक्ट कर सकते, मतलब कुछ न कुछ हम में कुछ फेक है, हम में कुछ प्रॉब्लम है, आप में नहीं है. तो हमने इस फिल्म में ये कोशिश की है, सुरेश ने की है, जितने भी आर्ट डायरेक्शन, सब ने वही कोशिश की है कि इसे जो भी हम काम करें वो उभर के आए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका AK for once again teaching us something today. I really appreciate you. I want to start by, of course, throwing this open to our friends from the media. I'm sure they have a lot of questions. The way this will go is they'll probably get a mic, or whenever you're asking the question, it'll be great. अगर आप खड़े हो जाएं, is that okay for the friends at the back, जिनके cameras हैं? I hope that's okay for the cameras at the back. Please do take your name and please do address your question to the person you want to ask it to. Hi. Hello. Hi, my question is for Nikhil. Nikhil, Amazon Prime has constantly backed up stories which originate from small towns, villages. Now, this film talks about AK in its full glory, the big picture. How does it all come together? And what was your vision? I think at the core, this is a story which is still set in a small town in the country. So that way, it's a very rooted story. The characters that you will see are people that you see in small towns. It's a story which is very deeply connected to the country. So that connection we've attempted our best to retain. But the scale on which we've told this story as a commercial movie, it's as I said, the biggest movie that we've done. The emotions are very rooted, but the scale is very international and big, and you would have seen that in the glimpse. So that's the attempt with the movie, to offer something which is really cinematic, really international, huge scale. But the emotions should continue to be something that all Indians can, and people universally can connect with. That's the endeavor. Thank you for your question. Thank you for your answer. Nikhil, moving on. Yes, ma'am. Hi. Hi, my name is Neetu Singh from दैनिक भास्कर. पहले आप सबको शुभकामनाएं. ट्रेलर सच में बहुत कमाल है, जिसका इंतजार था अनिल जी. वाकई बहुत ज़्यादा दमदार और ज़ोरदार अंदाज में आपको देखा है फिर से, उसके लिए पूरी टीम को बधाई. मेरा सवाल फैजल जी और मोना आपसे है, बिकॉज ये दोनों आपके किरदार बिल्कुल अलग हैं जो आप तक निभाते आए हैं. और बबली दीदी को देखकर तो वाकई बहुत डर लगा है मुझे. बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डेंजरस
किरदार में भी हैं जो अभी मैंने एक कोहरा देखी उसमें बिल्कुल अलग, धनवन के किरदार में, और इसमें बिल्कुल अलग. तो इसके डिफिकल्टीज आपके लिए क्या रही, चैलेंजेस क्या रहे? बिकॉज अब आपको ऑडियंस एक अलग रोल में देखेंगे तो वो भी एक आपके लिए चैलेंज होगा. और फैजल जी, ये जो प्रहलाद चा के बाद ये जो आपने अमीरी दिखाई है, ये आपके लिए कितना मुश्किल था, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी. सो यू नो मोस्टली एक्टर्स यही चाहते हैं कि अपने आप को रिपीट ना करें, और मेरी भी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं फिर से वही किरदार ना करूं जो पहले कर चुकी हूं. एंड आई फील वेरी वेरी लकी, ग्रेटफुल कि मेरे ऐसे दोस्त हैं. सुरेश ने मुझे ये रोल ऑफर किया एंड मुझे सच में बहुत चैलेंजिंग लगा क्योंकि ऐसा रोल मैंने कभी किया ही नहीं है. यू नो, नाम बबली है लेकिन कहीं से वो बबली है नहीं. सो यस, इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग. एक हार्टलैंड का आपको डायलेक्ट भी पकड़ना है और ऊपर से आप गुंडी दीदी भी बनी हुई हैं, पूरा सैंड माफिया आप चला रही हैं. और मतलब मैंने तो सूबेदार जी को दुखी कर रखा है पिक्चर में. बहुत एक्शन हो रहे हैं दीदी की वजह से. सो इट वाज ऑफ कोर्स चैलेंजिंग. तो चैलेंज हर एक्टर को पसंद आता है. मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है टू डू थिंग्स यू नो विच सरप्राइज मी, विच चैलेंज मी, विच गिव मी सम यू नो स्लीपलेस नाइट्स. तो वो सब मैंने महसूस किया ये प्ले करते वक्त और बहुत मजे किए. शुक्रिया जी. मेरा चैलेंज के हिसाब से कहूँ तो असली चीज जो है वो कहानी को लिखने के टाइम पे लेखक और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, आधा बैटल वो क्लियर कर चुके थे अपनी उससे कि वो किस आदमी को कैसे देख रहे हैं. तो चैलेंज तो नहीं कह सकते. ये होता है कि जितना उन्होंने सोचा था उसका अगर 10 में से 7 भी हो गया तो बहुत बहुत होता है. पर आइडली राइटिंग जो है वो असली हीरो इसलिए होती है क्योंकि वो आपको देख के, आपको सोच के कुछ लिखती है. तो अगर मतलब ये तो उनसे पूछना चाहिए कि चैलेंज जो उन्होंने मुझे दिया था मैंने ठीक से किया कि नहीं किया फिल्म देखने के बाद. पर यह है कि ऐसा किरदार जो है मुझे कभी जो है मिला नहीं था. और क्राइम फिल्म तो बहुत सी बनती है पर इस फिल्म का मजा कुछ और है. वो आपको जब आप देखेंगे तो आपको पता चला कि हर एक एक्टर में ही नहीं, मेरे बगल में जो भाई साहब बैठे हुए हैं इन्होंने भी जो है क्या बताऊं तोड़ दिया है. पर हम सब ने जो है कोशिश किया है कि जो हमको मिला है उसको हम लोग 100% से करें और आप सबको अच्छा लगे. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hi, this is Samina Sheikh here from Zoom channel. My question is to Anil Kapoor sir. At such a stage Right where at the back people there. slow down. Would you So, stand up? Yeah. Yeah, just for a second. Yes, thank you. Hello, sir. Thank you. So at such a stage where people slow down in terms of their career, aspect also, you have taken such a challenging role, which is emotionally very powerful. And Subedar is something which you have not explored. You said also, at the noise. How did you prepare for a role like this? And the trailer looks fantabulous, and we are looking forward to see something of yours, in terms of performance. I think challenges are what keeps me going. If I stop getting challenges, जिंदगी का जीने का मजा ही क्या है, you know. And I just love challenges. And जब ये किरदार मुझे ऑफर हुआ तो डेफिनेटली मुझे लगा कि ये इतना सारा एक्शन है जहां हम शूटिंग कर रहे हैं. और उस वक्त शायद मैं जाने से पहले थोड़ा सा चिंता में भी था, थोड़ी टांगों में प्रॉब्लम थी मुझे. मगर मैंने सुरेश साहब को बताया नहीं और मैंने कुछ कम से कम 6-7 जूते चेंज किए कि ये जूते में शायद ज़्यादा टांग की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जूते में नहीं. तो काफ़ी ये सब प्रेप कर रहा था. मगर पता नहीं क्या है, जैसे कि पहले भी मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं. मुझे एक फिल्म थी जिसमें घोड़े पे सवार होना था, कभी घोड़े पे सवार हुआ नहीं हम. कभी मैं चंबूर में रहता था तो वहाँ तो माथेरान में इतने बड़े बड़े घोड़े मैंने फिल्मों में देखे थे. मगर जब पता नहीं क्या होता है, कैमरा जब ऑन होता है ना, मुझे सब कुछ आ जाता है. ये क्या चीज है मुझे आज तक समझ नहीं आई है. एक्शन भी हो जाता है, घोड़सवारी भी आ जाती है, और मोटरसाइकिल भी बैठ जाता हूँ, गाड़ियों में भी बैठ जाता हूँ, धूल मिट्टी में भी. और कभी कभी 16 घंटे काम करता हूँ. कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू की है
और फिर सुबह नेक्स्ट डे सुबह 7 बज गए और पता चला कि फिर 12 बज गए दोपहर के नेक्स्ट डे, फिर 3 बजे पैकअप हुआ. ऐसा भी हुआ है. ये कैमरा पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, आई डोंट नो. सो आई थिंक अच्छी कहानी, अगेन आई रिपीट, अच्छे यू नो डायरेक्टर, अच्छा प्रोड्यूसर, और जब चैलेंज हो, क्योंकि कितने दिन में हमने फिल्म बनाई है सुरेश साहब ये फिल्म? या आई वाज जस्ट वांटिंग टू ऐड दिस. मैं Yeah. थोड़ा, क्योंकि आप थोड़ा टीडीएस काट करके अपनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे करने दो. इस फिल्म को हमने शूट किया था 44 डेज में. ओके. एंड इस इंसान से हम ना थोड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि 8 बजे की शेड्यूल में 7:30 बजे आके बैठ जाएंगे ऐसे. ओके. और वैन में नहीं जाते थे. हमने बिहाड़ में भी शूट किया इसको, कानपुर में भी शूट किया. ओके. रिलेंटलेस, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस जितने थे उसको कंप्लीटली मोबिलाइज करके हमने, जैसे अगर 44 डेज का शेड्यूल था, इनका काम कुछ 32 दिन का था. एवरी डे इनको प्रोडक्शन पहले ध्यान में आता है, पता नहीं क्यों. ये इनका दिमाग पहले था क्राउड कैसे कंट्रोल करूं. अच्छा वहां पे क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ओके मैं नहीं जाता हूं, मैं यहीं बैठा रहता हूं. ओके लाइट दो, मतलब सो हिज इन्वॉल्वमेंट इन अ प्रोजेक्ट मेक्स एवरीवन सो. मतलब इतने तो हम पूरी क्रू को तो मलाई मक्खन, क्या मक्खन मलाई खिलाया इन्होंने कानपुर में. ओके. सो क्या होता है कि इनके कारण हमको ज्यादा काम करना पड़ता है. मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनके कारण हमको दिखाना पड़ता है कि हम बहुत बिजी हैं. But it is incredible that amongst all his words, the discipline, and I'm not just saying it because he's sitting here, we all know it over here, that it is the discipline and the idea that to show up every day, day in and day out. I mean, it's unbelievable. आपने मुझे शेड्यूल के बारे में पूछा था, मैंने फुटेज खा लिया सर आपका. ठीक है. Okay. But that's, I will not trade it off, and that I think age is just a number. Is not just a saying. I think he lives for it. That's the madness that he has. He just loves cinema. Yeah. So yeah, thank you, sir. Thank you, sir, for being AK. Thank you. और you know, ये फिल्म जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ऐसे बैठे हुए, जो मजा किया ना इस फिल्म की शूटिंग में, जो हमने मजे किए हैं, हंसते रहते थे. दिवाली वहां मनाई, लक्ष्मी पूजा वहां की, खाया पिया, क्योंकि लखनऊ में आपको पता है कि कैसा खाना होता है, कानपुर में खाया, आगरा में खाया. तो ये मत समझना कि हमने, ऐसा एक दिन नहीं था जब हमने मजे नहीं किए इस फिल्म. और बहुत मट्टी भी खाया. मट्टी भी खाई. तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज आप जिंदगी में करते हो तो वो मेहनत तो सब करते हैं, आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, मगर यू शुड एंजॉय योर वर्क. एंड वी हैव रियली एंजॉयड मेकिंग दिस film. We had a lot of fun. The journey has been phenomenal. That is very important. कि ऐसा लग रहा है बड़े सब सीरियस ही बैठे हैं, रात को भी सीरियस, ऐसा कुछ नहीं है. वो आप फिल्म में देखेंगे, वो सब है, मगर मजे बहुत किए हमने. ऐसा एक दिन नहीं था जब हम लोग हंस पेट पकड़ के हंसे नहीं है इस फिल्म के अंदर. So I think the humor was constantly there, the fun was always there, great food, good food, and we were looked after very well. The production was phenomenal. और आज भी मैंने यही कहा कि आप सबको सबसे पहले बहुत जरूरी है कि खाना जबरदस्त होना चाहिए. खाना जबरदस्त होना चाहिए. खाना, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, काम चलता रहेगा, बट यू हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट. सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन मेकिंग दिस फिल्म. या बिसाइड्स आपका जो सवाल था कि कैसे करते हैं हम, मजे के बिना नहीं हो सकता. यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ सेंस, हैव टू हैव द सेंस ऑफ ह्यूमर. हंसते रहना चाहिए और लोगों का और खुद का मजाक करना बहुत जरूरी है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. That was a lovely, we actually went on to the set like that. Can I have the next question, please? Hi, Granelio from Bollywood Bubble. Radhika, my questions to you. You have given us, based on what we've seen in the trailer, it's pretty intense but emotional. Which was the most emotional scene or most intense scene for you to shoot with Anil sir? So very honestly, for me, the whole Shama was a very intense character. I think मैं क्योंकि switch on and switch off नहीं करती, तो
मैंने इतने मजे नहीं कर पाई मैं सेट पे। मैं मतलब उस जोन में ही रहती थी मोस्टली। तो हर सीन मुझे ऐसे जीने मरने का सवाल लगता था। मुझे लगता था अगर ये नहीं किया तो फिल्म खत्म हो जाएगी या खराब हो जाएगी। सो मेरे लिए सारे सीन्स काफी इमोशनल रहे हैं। बट आई थिंक जो प्री क्लाइमैक्स है, आप जब मूवी देखेंगे, आप हाँ, प्री क्लाइमैक्स, आई थिंक सुरेश सर व्हाट यू से, है ना, दैट्स बिन द मोस्ट चैलेंजिंग वन। उसमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत चैलेंजिंग था। देयर वर टाइम्स वेयर अगर जैसे सीन आप शूट कर रहे हैं, इफ सुरेश सर हैज कॉल काट, उसके बाद भी आपका रोना नहीं रुकता था। एंड सुरेश सर डर जाते थे, क्योंकि मुझे याद है एक बार हमने एक सीन में ऐसे किया था एंड ही कॉल काट एंड आई जस्ट केप्ट हाउलिंग एंड आई was walking back to my van and he was like, is everything okay? क्योंकि I'm sure अनिल सर सेट पे बहुत अच्छा माहौल रखते थे और मैं ही थी वो जो अपना सर पकड़ के कैरेक्टर के अंदर ऐसे डूब के कि ये जीने मरने का सवाल है, उस जोन में थी। तो आई थिंक फॉर मी इट हैज बिन लाइक रियली इमोशनली चैलेंजिंग। आई होप एंड आई प्रे आई गेट टू दैट लेवल जहाँ पर मैं दोनों बैलेंस कर सकती हूँ ब्यूटिफुली। एंड दैट इज समथिंग दैट इज रियली इंस्पायरिंग फॉर मी एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू बिकॉज इट क्रिएट्स अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर एवरीबडी ऑन द सेट। Thank you so much. Our next question. Hello, this side. Aruna from Filmy Mantra. My question is for Vikram sir. You have been backing up back to back. What is the secret behind it? And also tell us if you see Subedar as an character film first or action film first. We back the vision of storytellers. When we get creators like Suresh, that's enough for us. It's their vision that we take the responsibility of bringing to life. At Abundancia, at Opening Image, for me personally, it is all about that vision. हम उन फिल्मों को पर्दे पर लाते हैं जो कहानियाँ उनके लेखक, उनके निर्देशक अपने दिल से कहना चाहते हैं और ऐसे कहना चाहते हैं कि अगर वो कहानी उन्होंने नहीं कही ना तो उनकी जिंदगी में कहीं कुछ रह जाएगा. That's the passion that we seek in storytellers, and that's why you see the work that comes out of whatever little we are able to do. सूबेदार एक कंप्लीट फिल्म है, एक कॉम्प्रिहेंसिव फिल्म है. इसमें पावरफुल लीड कैरेक्टर है तो बहुत पावरफुल सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं. ये जो अभी आपने किरदार ट्रेलर में देखे, जो यहाँ स्टेज पर हैं, ये फिल्म मिट्टी से जुड़ी है लेकिन इसकी दुनिया बड़ी है. ये एक सर्टन प्रदेश में सेट है लेकिन ये कनेक्ट करेगी पूरी दुनिया में. तो ये फिल्म अपने आप में एक भरपूर एंटरटेनमेंट देने वाली फिल्म है. Thank you so much for that. Our next question, please. Yes, ma'am. Hi, my name is Monica from Viral Bollywood. My question is to Suresh. But the first part is this is your first moment foraying into action that leans heavily into action. However, trailer se samajh mein aata hai ki it also has a lot of emotional beats. So how do you design the rhythm that doesn't overpower one aspect of your film, that is the action part, with the emotional aspect? And I have a second question to Anil sir. You have been a leading man probably ever since I was born. I've seen you. What do you think has changed in terms of filmmaking, and how does the masculinity or the 80s and 90s grammar of masculinity has changed over the years now that you are also doing this heavy action-based film? Thank you. To answer your first question, I don't think so. I should be the one who should be replying, purely saying that whether the rhythm is work. That is something that once people will watch the film, they will decide. But my attempt has been that I've never looked at action as a result. Okay. It can't be the whole and all. I mean, it's not the only thing that we're talking about. So my intent is that we've gone back to the basics, which is about the tenets of story, the key tenets of story, and then following a certain emotional graph. The response is action. The response is always a genre of the film. Okay. So that's how I would like to. That's been my attempt and my writer's attempt. Prajwal was over here. And there's been no other conscious effort to move genres or something like that.
whatever I do, till whenever I will, I'm always interested in good actors, characters, and above all, they have to have some sort of a motivation. So that's how I will summarize my reply. Thank you. AK. So the question is, आपने क्या कहा? Can you repeat it, please? So, hi. So, You've been my fan since before you. Since I was born, I guess. Sir, आपसे पहली बार मिली थी तब I think 20 minutes I've only spoken about Majnu Bhai, so I think that's one of the reasons probably. So my question is कि 80s and 90s का grammar of masculinity and heroism काफी different था from what we are seeing currently in cinema and on OTT. What do you think has changed over the years now that you are also doing such a action-heavy led project, please? I think it's all about my endeavor always was to be attached to, again I repeat it, to good stories, great filmmakers, great team, and हर दौर में अच्छे filmmakers होते हैं और मैं बड़ा खुशनसीब रहा हूँ कि मुझे उनके साथ जुड़ने का मौका मिला और इसलिए वो फिल्में क्योंकि उनकी कहानियाँ अच्छी थी और कोस्टार्स मेरे अच्छे थे और इसलिए वो फिल्में आज भी लोग याद करते हैं और हमेशा मेरा यही एंडेवर रहेगा कि मैंने अपने आप को कभी ये नहीं समझा कि मैं खुद एक फिल्म को अपने कंधे पर सब कुछ कर सकता हूँ. मेरे लिए बहुत ये मायने रखता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार के साथ जुड़ा हूँ जिन्होंने हमेशा अपना सब कुछ किया है फिल्में बनाने के लिए और हमेशा मैंने फिल्म प्रोड्यूस भी की हैं, बहुत सारी फिल्में के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में जुड़ा रहा हूँ और हमारा यही रहता है कि जो हमारे फिल्म का जो डायरेक्टर हो उसको हम उसके चेहरे पर जब मैं मुस्कान देखता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अपने डायरेक्टर को खुश कर दिया एंड वही फ्रॉम द टाइम मैंने 1983 में जब मैं लीडिंग मैन पहले भी था मैं मगर कोई मुझे जानता नहीं था बट फिल्में की थी मैंने बट बापू साहब से लेके डायरेक्टर जो थे मेरे वो 7 दिन के 1983 एंड 2026 त्रिवेणी साहब हैं, सुरेश साहब हैं. तो मेरी यही उम्मीद है कि मैंने इन्हें खुश किया है कि नहीं. हैव आई मेड यू हैप्पी सर? That's what I always do. And of course, the love from the audience and the media has been fantastic with me. I've got so many friends here since more than 44, 45 years. और सब आए हैं यहाँ और उनको देखकर बड़ी खुशी हो रही है. कुछ नए दोस्त भी हैं यहाँ मेरे. And they've given me so much of love. And so much of, I cannot, I'm really grateful. Seriously, I'm telling you, to the audience, to the media, to all my friends, co-stars, leading ladies, directors. It's been absolutely a wonderful, fulfilling, I just feel overwhelmed and it's only gratitude. कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था जब मैं चंबूर में रहता, भावना मुझे जानती है इतने सालों से कि मैं जब छोटे मोटे रोल्स करता था और मैं स्ट्रगल कर रहा था और आज मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के सामने. मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी फिल्में कर सकूंगा और मैं आपके सामने और एक ऐसी फिल्म के साथ में जुड़ा हूँ जहाँ अमेज़न जो है वो 5 मार्च को 240 देशों में, उससे भी ज्यादा देशों में रिलीज कर रही है. It's the accessibility. और ये मार्च का जो महीना है ना, ये कमाल का महीना है. फेस्टिवल्स भी हैं, फिल्में भी बहुत रिलीज हो रही हैं, वर्ल्ड कप भी है, ऑडियंस के तो मजे ही मजे हैं. ये मार्च का महीना एंजॉय कीजिए, सब फिल्में देखिए एंड इट्स जस्ट द सेलिब्रेशन ऑफ entertainment this month.
for everybody. So I'm very, very lucky that we are in this month where so much is happening, and I'm just full of gratitude, and that's what I can say. Yeah. Thank you for your question. Can we have another one, please? Yes, sir. I Hi. think there's a mic already there. Hi, Where's the yo. mic? Would you stand up, please? Hi. Thank you. Hi, this is Astha from Awesome TV, and my question is to Aditya. Your character feels sharp and aggressive. What excited you the most for the role? It was, I suppose, to play a character that is so colorful and no holds barred, but to do it opposite a character like Subedar that is played by somebody like Anil sir, somebody who has that kind of gravity, to see how that kind of brashness matches up with that kind of gravitas. I think that aspect of it was most interesting to me. And very honestly, it was also the opportunity to work with Suresh sir as a... Hi, cutie. Not a black one, no? No. Okay, all right.